If you think your abs are for just a six pack, have you ever done hundreds of crunches? Core muscles जो आपके body के A area को surround करते हैं. Just stay in this position. Time it will also help to improve your balance. If you think your abs are for just a six packs, think again. Your real power lies deeper. And this video will reveal what your core is truly meant for and how to activate it on a daily basis. Hey everyone, this is Sanjeev Kaliwala, your health strategist, and I work with busy corporate leaders and women in their 30s or 40s to stay fit and energetic and pain free without spending hours in the gym. So let me ask you this. Have you ever done hundreds of crunches still struggling from the back pain? Or you may look lean, still feeling unstable and low energetic throughout the day? That's because you are focusing on a wrong thing. And this video is not about how to get six pack abs, but it's all about your core muscles, the engine of your body. And once you understand these muscles clearly, you will train smarter, you will move better, and you will feel more energetic than ever. Even you sit for 10 hours a day. So stick around because in this video, I am going to bust few myths and I will also be sharing a practical moves to activate your core, and we will also working on the real strength, the kind of strength which is going to keep you pain free for the life. Without wasting time, let's dive in the topic. In this video, you are going to learn the actual difference between core muscles and just a six pack abs. क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जब कोर मसल्स की बात आती है तो किसी हीरो का पिक्चर घूमता रहता है, सिक्स पैक या एट पैक्स का पिक्चर घूमते रहता है। और हमें से ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं जिसके पास सिक्स पैक्स या एट पैक्स है उनका ही कोर स्ट्रांग होता है, जो आधी सच्चाई है। इट्स ए नॉट कंप्लीट फैक्ट। और आप ये भी सीखोगे कैसे एक स्ट्रांग कोर आपकी मदद कर सकता है आपका पोस्चर बनाए रखने में, आपको किसी तरह का बैक पेन के इश्यूज से दूर रखने में, and even it will help to enhance your performance at your work. और मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्कआउट्स भी आपसे शेयर करूंगा जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके कोर को एक्टिवेट करने में सीधे आपके घर से ही. तो लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड एंड लेट मी शेयर व्हाट आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो. सबसे पहले हमें जानना है एक्चुअल कोर मसल्स होते क्या है. स्ट्रॉन्ग कोर इज नॉट ओनली सिक्स पैक. कोर इज इक्वल टू एप्स. एक दिस इज नॉट द फैक्ट. एक्चुअल कोर मसल्स आर दिस. मैंने कुछ मसल्स लिए हैं आपको बताने के लिए. ये सब मसल्स कंबाइनली नोन हैज ए कोर मसल्स. एक सिलेंडर शेप में होते हैं जो आपके लोअर बैक को सपोर्ट करते रहते हैं. आपका लोअर स्पाइन अंदर होता है और ये सब मसल्स उसको सराउंड करके सपोर्ट करते रहते हैं आपको आपका पोस्चर बनाए रखने में और आपको डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने में. उसमें से सबसे पहला मसल है आपका एप्स. जो आप सिक्स पैक या एट पैक जो भी देखते हो, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर कोर मसल्स. एंड सेकेंड मसल आर ऑब्लिक जो आपके साइड में सिचुएटेड होता है, आपके बॉडी के साइड में. एंड थर्ड मसल्स आर योर लोअर बैक विच आर सिचुएटेड बैक साइड ऑफ योर body and which supports your lumbar spine. And next muscles are deep spine stabilizers. ये अंदर की तरफ होते हैं आपके core muscles के आपके layer में, and which are known as TVS, transversus abdominis, which supports your spine to stay erected. And one more muscle group are your pelvic floor जो आपके pelvic joint को cover करके रखते हैं, जैसे glutes, hip flexor. ये सब मिला के core muscles कहा जाता है, not only six pack or eight pack kind. Glutes. Glutes are the biggest muscle group in your body and they are also a key core muscles in your body. क्या आपको confusion हो रही है सब names देख के? Let me make your work easy. Let me make your understanding easy. तो आपको easily understand करने के लिए you can go through this picture. Let me focus this. These all are known as core muscles जो आपके body के A area को surround करते हैं, जिसमें आपके abdomens हो गए हैं, obliques हो गए हैं, आपके lower back हो गया है, आपके ग्लूट्स हो गए, आपके जो भी पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट करते हैं मसल्स, ये सब मसल्स को मिला के कहा जाता है कोर मसल्स. एंड यू कैन सी दे आर सिचुएटेड इन द क्रूशियल एरिया ऑफ योर बॉडी, क्योंकि इस एरिया में यू कैनॉट सी एनी बोन टू सपोर्ट योर स्पाइन.
इस एरिया में सारे मसल्स ही होते हैं जो आपके स्पाइन को सपोर्ट करते रहते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड ए स्ट्रॉन्ग कोर to stay away from any kind of aches or to keep our posture in its place. This was a small explanation about core muscles. Core muscles होते कहाँ हैं, कौन से muscles को core muscles कहा जाता है और क्यों ये इतने important होते हैं अपने बॉडी में। और इससे ये भी साबित हो जाता है कि सिक्स पैक या एट पैक होते हुए भी आपके कोर मसल्स वीक हो सकते हैं। यू मे हैव सिक्स पैक और एट पैक, स्टिल यू कैन हैव वीक कोर मसल्स। Let's dive in the second point of our video where people think core muscles are for aesthetic look. ये दिखावे के लिए बने हुए हैं जैसे सिक्स पैक या एट पैक, बट नो, कोर मसल्स आर एब्सोल्युटली मेड फॉर स्टेबलाइजेशन। इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं आपके बॉडी में। अगर आपका कोर स्ट्रांग होता है, इट विल हेल्प यू टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरीज, स्पेसिफिकली लोअर बैक इंजरीज जो ज़्यादातर होता है अपने डे टू डे एक्टिविटीज में। इफ यू नोटिस, मोस्ट ऑफ द इंजरीज टेक्स प्लेस व्हेन वी परफॉर्म our day-to-day activities like lifting something from the ground, lifting our children, pulling something at home, pushing something। ऐसे एक्टिविटीज में इंजुरीज होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर आपका कोर वीक होता है। सो जो जो रिवर्स हो सकता है स्ट्रॉन्ग कोर से। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेंटेन योर बैलेंस इन ए बेटर वे। इफ यू नोटिस, एज वी एज, जब हमारा एज होने लगता है, जैसे कुछ एज क्रॉस करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 40s 50s 60s, हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है ड्यू टू वीक कोर। और इस एज में गिरना या एक्सटर्नल इंजरीज होना बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। अगर आपका कोर स्ट्रांग होता है, अगर आप डेली अपने कोर पे काम करते हो और अपने कोर को स्ट्रांग बनाए रखते हो, आप ऐसे इंजरी से, ऐसे इम्बैलेंस होने वाली चीज़ों से बच सकते हो और आपके बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। इन अ नटशेल, अगर आपका बैलेंस नहीं होता है, obviously you can keep yourself away from any external injuries. And one more important function of strong core is it will help your movement efficiency. अगर आपके कोर मसल स्ट्रांग होते हैं, आपका मूवमेंट जो भी स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, गेटिंग अप, ऐसे जो भी मूवमेंट होते हैं आप एफिशिएंटली कर सकते हो, इंजुरी फ्री कर सकते हो। एंड वन मोर बेनिफिट इज इट विल अलाइन योर स्पाइन। इफ यू नोटिस, as I said you, इन योर कोर एरिया देर आर नो अदर बोन्स टू सपोर्ट योर स्पाइन। वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है जो आपके रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करे। ओनली मसल्स आर सपोर्टिंग योर स्पाइन। तो इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कोर, ऑब्वियसली योर स्पाइन विल बी अलाइंड इन इट्स प्लेस, विच विल हेल्प यू टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिसअलाइनमेंट और इंजुरीज। एंड इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट द जॉइंट्स। जो आपका स्पाइन होता है उसमें भी जॉइंट्स होते हैं जिसे वर्टिब्रे कहे जाते हैं, जो आपके नेक सेक्शन में होते हैं 7, आपके मिड बॉडी में होते हैं 12 और आपके लोअर बॉडी में होते हैं 5। तो ये सब जॉइंट्स को प्रॉपरली अलाइन करके रखने में या प्रोटेक्ट करके रखने में आपके कोर मसल्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड ए स्ट्रॉन्ग कोर टू सी ऑल दिस बेनिफिट्स, ना कि सिर्फ सिक्स पैक या एट पैक बना के किसी के सामने पोज करना। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्यों, आखिर क्यों स्ट्रॉन्ग कोर चाहिए हमें? वाई वी नीड ए स्ट्रॉन्ग कोर? स्पेसिफिकली इफ यू आर ए कॉर्पोरेट लीडर और ए वुमेन, or if you have a desk job where you are sitting for a long hours, that time definitely you need to work on your core, and you need a strong core to keep yourself away from any kind of injuries, because prolonged sitting can weaken your core। आप ज़्यादा समय बैठते हो तो ऑब्वियसली ये आपके कोर मसल्स को वीक करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके लिए आपको आपके कोर पे काम करते रहना चाहिए और आपके कोर को स्ट्रांग बनाते रहना चाहिए, जो आपकी मदद कर सकता है आपको लोअर बैक जैसी इश्यूज से दूर रखने में। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेक टेंशन। जब आपके कोर मसल्स का स्ट्रेंथ बिगड़ने लगता है, नॉट ओनली इफेक्ट्स ऑन योर लोअर बैक और लोअर बॉडी, ये शूट करता है आपके नेक तक भी, आपके अपर बॉडी तक भी ये शूट करता है। एंड यू विल फील डिस्कम्फर्ट और टेंशन इन योर सर्वाइकल एरिया, आपका जो नेक एरिया होता है वहाँ पे भी। दैट्स वाई वी नीड टू वर्क ऑन योर कोर, ऑन आवर कोर एंड कीप इट स्ट्रांग। और आपके वीक कोर मसल्स रिप्रेजेंट करते हैं वीक पोस्चर को। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो डेस्क पे काम करते हैं, जो ज़्यादातर समय बैठ के अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर्स पे काम करते रहते हैं, उनका पोस्चर बिगड़ने लगता है, उनके शोल्डर्स आगे आने लगते हैं,
वो सामने झुके हुए लगते हैं। ये सब चीज़ें वीक कोर की तरफ इशारा करती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन आवर कोर टू मेंटेन आवर बैलेंस। जब आपका बैलेंस या पोस्चर बिगड़ने लगता है, ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट सीइंग मसल इम्बैलेंसेस which will lead to several injuries in your day-to-day activity. And core muscles are not only related to your posture or balance or injuries. ये दिस ऑल्सो रिलेटेड टू यूर एनर्जी लेवल्स, क्योंकि आपका जो कोर होता है ये आपके बॉडी का इंजन होता है, ये पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कोर है, आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली यू विल बी सीइंग ए गुड डाइजेशन। ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू यूर एनर्जी। तो अगर आपका कोर स्ट्रांग है, दैट मीन्स यू विल बी मोर एनर्जाइज्ड, यू विल बी लेस फटीग्ड, विच विल डायरेक्टली हेल्प टू एनहांस यूर वर्किंग परफॉर्मेंस। एंड लेट्स सी फ्यू साइंस, कुछ ऐसे इशारे जो आपको बताते हैं कि आपका कोर वीक है। लेट्स सी, उसमें से सबसे पहला है, अगर आपको कंस्टेंटली लोअर बैक रहता है, जो कितना स्ट्रेचिंग करने के बाद भी, कितने पेन किलर्स लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, दिस इज द डायरेक्ट साइन ऑफ वीकर कोर मसल्स। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पुअर बैलेंस और ऊबी मूवमेंट्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर आपका कोर मसल्स, आपका कोर एरिया वीक है, देर विल बी ए प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग। और आपके मूवमेंट्स जैसे बैठना, उठना, चलना, ऐसे मूवमेंट्स में अगर आप शेकी फील करते हो, अनस्टेबल फील करते हो, डायरेक्ट इशारा करता है आपके कोर मसल्स वीक है। एंड स्लॉचिंग वाइल सिटिंग, जब आप बैठते हो काम पे एंड अननोइंगली यू आर स्लॉचिंग, यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड और आपके शोल्डर सामने आ जाए, ये सब साइंस है आपके वीक कोर को, और इशारा करते हैं टू टेक immediate step on working on your core muscles and difficulty in standing or walking. अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हो, इफ़ यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट इन योर लोअर बैक, या आपका लोअर बैक पे में पेन शूट कर रहा है, ये भी इशारा करता है। एंड इवन फीलिंग डिस्कम्फर्ट वाइल यू आर वॉकिंग, आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं पा रहे हो, अगर फोर्सफुली चल रहे हो तो आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है या तो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ये सब इशारे होते हैं आपके लोअर बैक मसल्स की तरफ। एंड coming to the next sign, it's very common, if you see few people will be lean, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, स्टिल उनका पेट जो है आगे की तरफ निकला रहता है, बल्ज बेली जिसे कहते हैं। ये भी डायरेक्ट इशारा करता है वीक कोर मसल्स की तरफ। और ये सब इशारे में से अगर कोई भी एक आपकी बॉडी में आपको दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएटली आपके कोर मसल्स पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपका हेल्थ बना रहे और आप किसी तरह का सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से बच सके। Now let's dive in the practical videos. Let me share few moves you can add in your day-to-day activity, जो आप अपने घर से ही कर सकते हो और अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हो ऑन ए डेली बेसिस, जिससे आपके कोर मसल्स का स्ट्रेंथ बना रहे और आप हेल्दी रहे और फिट रहे और किसी तरह का इंजरीज से आप दूर रहे। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। उसमें थोड़े से मैंने एक्सरसाइज चुने हैं जो आप कर सकते हो आपके घर से। उसमें सबसे पहला एक्सरसाइज, वन ऑफ द पावरफुल एक्सरसाइज इज प्लैंक। प्लैंक में आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट स्टे इन दिस पोजीशन। अगर इस पोजीशन में आपको बने रहने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने नीज पे ग्राउंड पे रख के आप स्टार्ट कर सकते हो, विच विल बी द बेसिक फॉर्म ऑफ प्लैंक। और प्लैंक में आप ना ही आपके सिक्स पैक का abdomen पे काम कर रहे होते हो, आप अपने ग्लूट्स पे या वो सारे मसल्स एक्टिवेट कर रहे होते हो जो आपके स्पाइन को सराउंडेड होते हैं। एंड इफ यू सी इन दिस वीडियो हाउ ये one move you can modify in different ways, you can add different ways, you can tweak this move to activate your core at the same time your glutes, your obliques. So in this, if possible, from plank to the next progression, you can come on elbow plank. From elbow plank to the third progression, you can lift one leg. This will help to activate your glute. At the same time, it will also help to improve your balance. And after this, you can progress to the side plank to activate your oblique muscles, which is also the part of your core muscles. And
You have to keep your body in a plank position in this moment. And coming to the next workout is a easy workout, simple workout, and very effective workout which can be done from anywhere. You just need a mat and a small place to perform this activity. And this activity known as glute bridges. In this activity, you have to lay down on the floor, bend your knees, and lift your pelvic area above the ground. And when you lift your pelvic, just try to squeeze your glutes. जो आपके glutes को एक्टिवेट करने का ट्राई करिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और आपको हेल्दी बनाए रखने में आपकी मदद करे. एंड repetitions you can go for 12, 15, 20 repetitions. Even you can go for 3 to 5 sets. And the next workout is dog bird. It is one of the best workout you can say, and it is known as bird dog or dog bird, anything. In this workout, you are not only activating your glutes, you are also focusing on the coordination. It's a little bit coordination combined, coordination related workout. तो इसमें आप अपने coordination पर भी काम कर रहे हो, क्योंकि you are lifting one hand and opposite leg. जो आपकी मदद कर सकता है आपकी फोकस बढ़ाने में. At the same time, it will also help you to activate your glutes and your core muscles, which will help you to stay stronger. And coming to the next workout, it a knee to elbow crunches or dead bug. It's a little bit advanced version of dead bug workout. So in this workout, you are bringing your knees to your opposite elbow. And in this workout, you are not only using your core muscles, you are also using your lower body. So it is also a little bit coordination related workout, which will help you to improve your focus. And at the same time, it will make your core muscles stronger and efficient. Now coming to the next workout of our session, it's none other than squats. Most of the people think squats are just for legs, but no. Squat is a complete body movement. It's excellent compound movement. It's a BAP of compound movements, we can say. Because in this exercise, you are not only using your legs, you are also using your glutes, your core, and even your upper body. That's why this becomes one of the best compound movement which will help you to build a strong core. And in this workout, you can go for 15 to 20 repetitions and 3 to 5 sets to build a strong core. So these were the few movements, these were the few exercises you can add in your daily routine to activate your core muscles and to become stronger in your core area, to keep yourself away from any kind of injuries and to stay healthier, stronger for a longer time. So this was all about in this video, but still if you are have a confusion how and where to start your fitness journey, I'm sharing a link in my description box. Just click on the link and join my community of like-minded people where we are helping each other to achieve our fitness goal. And if you like this video, please do share with your friends, and please don't forget to subscribe to my channel for more informative videos like this in future. So this is Sanju Kaliwala signing off, and see you in the next video. Till the time, stay healthy, stay fit, take care. Bye bye.